والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آج کے محاضرے کا موضوع ہے قیاس۔ کہا جاتا ہے کہ نصوص محدود ہیں، واقعات غیر محدود ہیں۔ نصوص محدود ہیں، واقعات غیر محدود ہیں۔ ظاہر ہے کہ محدود نصوص کے ذریعے سے لامحدود واقعات کو حل کرنا مشکل ہے۔ ہر حال میں جو نصوص ہیں، قانونی عبارتیں ہیں، وہ کیا رہیں گی؟ محدود رہیں گی۔ وہ لامحدود تو نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن واقعات لامحدود ہیں۔ ہر روز ایک نیا نیا واقعہ پیش آتا رہتا ہے، اس لیے قیاس کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر قیاس کے کہیں کام نہیں چل سکتا۔ قیاس لغت میں کہتے ہیں ناپنے کو۔ کیا؟ ناپنا، اندازہ لگانا۔ کہا جاتا ہے قسط الثوب بالذراع، میں نے کپڑے کو ذرا کے ذریعے ناپا۔ قیاس کے معنی ناپنا، اندازہ لگانا۔ کسی چیز کی مقدار کا اندازہ لگانے کو کہا جاتا ہے قیاس۔ انگلش میں لفظ گیاس یا گیس اسی معنی میں آتا ہے، لفظ گیس۔ ہاں ہاں، گیس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گیس کرو، یعنی جی اندازہ لگاؤ۔ ہاں ہاں ہاں، اندازہ لگاؤ، اسی قیاس سے ہے۔ یہ گیس جو بنا گیا ہے، انگلش کا لفظ کس سے بنا گیا ہے؟ اسی لفظ قیاس سے۔ یعنی عرب بھی آج کل کیا کہتے ہیں؟ چم گیاس ملنتا، یعنی کسی ٹیلر کے پاس جائیں کپڑا دینے کے لیے تو پوچھے گا کہ تمہارا ناپ کیا ہے، کیا لفظ استعمال کرے گا؟ چم گیاس مل انتا۔ تو کمر کی ناپ، اس کی ناپ، اس کی ناپ دیتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ ہاں کمر کا ناپ کیا ہے، 22 ہے، 25 ہے، 30 ہے، کیا ہے، اس کے اعتبار سے بتلاتے ہیں۔ تو القیاس لغتاً کسی چیز کی مقدار کو جاننا، معرفت و قدر الشیء، کسی چیز کی مقدار کو جاننا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے قسط الثوب بالذراع، میں نے کپڑے کو ذرا کے ذریعے ناپا۔ اصطلاح میں قیاس کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں قیاس؟ ہاں چلیے ہم آپ کو مختصر سی تعریف بتلا دیتے ہیں، لمبی چوڑی نہیں۔ اس الحاق المسکوت عنہ بالمنطوق، الحاق المسکوت عنہ بالمنطوق لعلت جامعۃ۔ ہاں، الحاق المسکوت عنہ بالمنطوق لعلت جامعۃ۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ جس کے بارے میں شریعت میں صراحت ہے، کیا ہے؟ اسی کو کہا گیا منطوق۔ کیا کہا گیا ہے؟ شریعت نے اس کے حکم کے بارے میں صراحت کر دی ہے۔ اور ایک وہ ہے جس کے حکم کے بارے میں شریعت خاموش ہے، شریعت میں اس کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ مسکوت کو آپ نے صریح کے ساتھ لاحق کر دیا۔ مسکوت کو آپ نے کیا کیا؟ کیوں لاحق کیا؟ لعلت جامعۃ، دونوں کے درمیان ایک ایسی علت ہے جو دونوں میں پائی جا رہی۔ لعلت جامعۃ، یہ علت کیا ہے؟ جامع ہے، یہاں بھی موجود ہے اور
वहां भी मौजूद है। इसी का नाम क्या है? कयास। इल्हाक के माने आते हैं बस इजहार। क्या करना? इजहार। यानी कयास के जरिए से कोई शरई हुक्म साबित नहीं होता है, बल्कि शरई हुक्म को जाहिर किया जाता है। क्या किया जाता है? शरई हुक्म उसके बारे में मौजूद है, अलबत्ता कुछ लोगों के लिए वो क्या है, मख्फी है, पोशीदा है। एक मुज्तहिद उसी से पर्दा हटा देता है। इसलिए कहा जाता है अल कयासो मुजहिरुन ला मुस्बितुन। कयास क्या है? मुजहिर है, मुस्बित नहीं है। किसी हुक्म शरई को कयास के जरिए साबित नहीं किया जाता। हुक्म तो क्या है, पहले से साबित है, अलबत्ता मख्फी है, मुज्तहिद उसे जाहिर कर देता है बस। जैसे 6 चीजों के बारे में सराहत है कि उनमें सूद है। अलहिंता बिलहिंता वश्शईर बिश्शईर। चावल के बारे में सराहत नहीं है। चावल के बारे में सराहत नहीं है। शरीयत खामोश है कि चावल का तबादला चावल के साथ किया जाए तो कमी बेशी के साथ किया जा सकता है, या कमी बेशी के साथ नहीं किया जा सकता। आपने कहा नहीं साहब, किया, कमी बेशी के साथ चावल का तबादला भी चावल से नहीं किया जा सकता है। क्यों? जो इल्लत गेहूं में है वही इल्लत चावल में है। चाहे हम माने कैल, चाहे हम माने तो। हनफिया के नजदीक इल्लत क्या है? कैल माल जिन्स। दीगर के लोगों के नजदीक क्या है? इमाम शाफी के नजदीक तो माल जिन्स। खाने की चीजें, ताम हो, क्या हो? ताम। ये खाने की चीज। इल्लत पाई जा रही है दोनों नुक्ते नजर के मुताबिक। इसलिए चावल को भी कमी बेशी के साथ बेचना नाजायज है। ये जो कयास है इसको कहा जाता है कयास तर्द। क्या कहा जाता है इसे? कयास तर्द। कयास की और बहुत सी किस्में हैं। एक कयास शिबही है और एक कयास अक्सी है। क्या है कयास अक्स? कयास अक्स में क्या किया जाता है? जो हुक्म मकीस अलह में है, मकीस में उसके बरखिलाफ हुक्म लगाना। क्यों? इसलिए कि मकीस में उसके बरखिलाफ इल्लत पाई जा रही। मकीस में क्या है? मकीस अलह, जिस पे कयास किया जा रहा है, यानी असल मंतूक। तो जो हुक्म लगाया गया है किस पे? मकीस अलह पे। मकीस पे उसके बरखिलाफ हुक्म लगाइए। क्यों? मकीस में उसके बरखिलाफ इल्लत पाई जा रही है। इसकी मिसाल दी जाती है, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए तो ये भी बाइसे सवाब है, बाइसे अजर है। तो लोगों के लिए बात तज्जुब की बात थी, बड़ी हैरत की बात थी। सवाल किया साहबा किराम ने, वहां तो जाके आदमी शहवत पूरी करता है, क्या हम में से कोई अपनी शहवत पूरी करे और उसके बाद उसे सवाब मिले? कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, शहवत पूरी करने पर भी क्या है? सवाब है। अल्लाह के रसूल ने कयास किया इसको, इस पे, सेना पे। पूछा कि अगर कोई शख्स गैर जगह में, अपनी नाजायज जगह में अपनी शहवत पूरी करे तो क्या उसे अजाब होगा? हाँ बिल्कुल अजाब होगा, सब जानते हैं। जिना क्या एक जुर्म है। उस जाहिली मुआशरे में भी जना जना को अच्छा नहीं समझा जाता था। तो जिना तो जुर्म है। तो कहा जिस तरह से आदमी नाजायज जगह में अपनी शहवत पूरी करे तो उसे अजाब मिलता है, इसके बरअक्स जायज जगह में अपनी शहवत पूरी करे तो उसे क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। देखा आपने? जो इल्लत यहाँ थी उसके बरअक्स इल्लत क्या है, यहाँ पाई जाती है। जो हुक्म यहाँ लगाया गया था उसके बरअक्स हुक्म यहाँ लगा जाएगा। यहाँ अजाब है, वहाँ क्या है? सवाब। इसे क्या कहा जाता है? कयास अक्स। कयास और दलालत नस।
कयास और दलालतुन नस। दलालतुन नस ये एक आम शख्स भी जान सकता है, इसके लिए बस लुगत जानने की जरूरत होती है। दलालतुन नस का मतलब क्या है? आम शख्स भी उसे जान सकता है, बस जरूरत होती है किसकी? लुगत जानने। लेकिन कयास के लिए इज्तिहाद की जरूरत पड़ती है। आम शख्स कयास नहीं कर सकता है, बल्कि कयास के लिए इज्तिहाद शर्त है। कोई गैर मुजतहिद कयास करे तो वो गलती करेगा। ये फर्क है किसमें? दलालतुन नस में और कयास में। दलालतुन नस की मिसाल तो याद है ना आपको? हाँ हाँ, वला तकुल लहुमा उफ, उफ मत कहो। तो अगर कोई भी अरबी जबान जानता होगा तो क्या कहेगा? समझ लेगा कि उफ मत कहो, इसका मतलब मारना, पीटना, गाली देना। ये क्या है? उससे बड़ा जुर्म है। जब उफ कहना मना है तो गाली देना और उसके बाद मारना पीटना, ये क्या है? उससे बड़ा जुर्म है। नहीं, इसका नाम क्या है? दलालतुन नस। हमने कहा दलालतुन नस के लिए क्या है? महज लुगत जानने की जरूरत होती है। इसलिए आम शख्स भी दलालत से पता लगा सकता है।